Hello, good morning girls. Today we discuss about the capital expenditure decisions in public sector undertakings. Now we discuss the government of India decided way back in 1961 that financing pattern would have a debt equity ratio of 1:1. Every new project will have half the investment in equity capital and the other half in debts. A decision about capital expenditure involves a number of organizations. यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 में ये डिसाइड किया कि फाइनेंसिंग का पैटर्न जो है वो डेट इक्विटी रेशियो होगा जो कि 1:1 होगा और प्रत्येक न्यू प्रोजेक्ट के लिए हाफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी कैपिटल का होगा और अदर हाफ जो होगा वो डेट का होगा। और इस डिसीजन में कैपिटल एक्सपेंडिचर के नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इन्वॉल्व थे। द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व्ड in taking up the new schemes, deciding about expansions, modifications, diversifications, etc. यानी जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो इसमें इन्वॉल्व थे डिसीजन लेने में, तो वो डिसीजन में किसके बारे में डिसाइड किया गया? एक्सपेंशन के बारे में, मॉडिफिकेशन के बारे में और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। अब वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि इसमें शामिल थे? पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द अंडरटेकिंग्स, सेकंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एंड थर्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड PIB और फोर्थ है प्लानिंग कमीशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री, it is also very important. And sixth is Bureau of Public Enterprises, BPE, and last is the Director General of Technical Development, DGTD. Yani every capital expenditure proposals is first discussed at a board of directors level of concerned enterprise. The board can decide only up to a certain amount. The proposals requiring more investment are recommended by the board to the concerned administrative ministry. After a proper study at ministry, the proposal is either sent to Public Investment Board or Project Appraisal Division PAD को, depending upon the cost involved. PAD यानी Project Appraisal Division evaluates proposals requiring rupees 1 crores or more, whereas PIB means Public Investment Board deals with proposals of rupees 5 crores or more. At this level, various aspects of proposals such be as technical, financial, economic, managerial, profitability, etc. are evaluated. After scrutiny at ministry level, the proposals goes to the investment planning committee of the planning commission. The advisor यानी industries के लिए also examines the proposal
and then it is recommended to be included in 5 years plan. The finance ministry has to raise funds for the various schemes, the civil expenditures division and Bureau of Public Enterprises in Department of Expenditure under the Ministry of Finance are engaged in scrutinizing the proposals of public enterprises. Right? तो फर्स्ट जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि इसमें पार्टिसिपेट किया गया है, जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, उसमें पहला है every capital expenditure proposals is first discussed at the board of directors. यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के जितने भी प्रस्ताव हैं सबसे पहले जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल पर डिस्कस किए जाएंगे कंसर्न इंटरप्राइज से के फिर बोर्ड कैन डिसाइड, फिर उसके बाद में जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डिसाइड करेगा ओनली अप टू अ सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट तक वो डिसाइड करेगा. The proposal requiring more investment are recommended by the board कि प्रपोजल में जो है कितना इन्वेस्टमेंट है उसका रिकमेंडेशन बोर्ड करेगा टू द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को, जो भी उससे संबंधित मंत्रालय होगा उसको वो रिकमेंड कर देगा. राइट? आफ्टर अ प्रॉपर स्टडी ऑफ मिनिस्ट्री the proposal is either sent to the public investment board और प्रोजेक्ट अप्रेजल डिवीजन. यानी फिर जो वो प्रपोजल जो है जो कि मिनिस्ट्री को भेजा जाता है उसकी प्रॉपर स्टडी करने के बाद मिनिस्ट्री उसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड को या फिर प्रोजेक्ट अप्रेजल डिवीजन को भेज देती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट इन्वॉल्व, और ये डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी लागत आ रही है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी पैड जो है वो इवेलुएट करता है प्रपोजल्स का रिक्वायरिंग ₹1 करोड़ और मोर. यानी जो पैड है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है वो 1 करोड़ तक के या उससे अधिक कुछ उसका इवेल्युएशन करता है प्रपोजल्स का. Whereas PIB पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है आपका डील्स विद द प्रपोजल्स ऑफ ₹5 करोड़, वो 5 करोड़ के प्रपोजल्स को डील करता है या उससे अधिक का. एट दिस लेवल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रपोजल्स सच बी एज, अब कौन कौन से प्रपोजल्स है, टेक्निकल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, मैनेजेरियल हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा आर इवेलुएटेड. इनका सबका इवेल्युएशन होता है. राइट गर्ल्स? ओके.